सब लोगों को मेरा आवाज क्लियर है एंड स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है क्लियरली? ओके, perfect. So let's start with our session then. Understanding forwards and futures is our basic main topic. And let's say कि हम यहाँ पे हमने लास्ट टाइम जो थे, आप अगर आप मैं जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग लास्ट टाइम सेशन में थे बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स के? किसी ने लास्ट टाइम का बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव का सेशन देखा था? ओके, सो लॉट्स ऑफ न्यू पीपल हियर आई थिंक. So ठीक है. So I will tell you that in last session as well we had discussed the basics of derivatives in detail, like in but step by step understanding with a example as well कि like कैसे एक derivative contract कैसे work करता है. And in simple terms if I tell you कि like derivatives जो है वो एक it's a huge tree under which all these forwards, futures and option contracts come. So understanding derivative contracts and understanding the basics of derivatives becomes very important for us, so that we can carry forward with our anything that we have interest in, like futures and options trading. So most of the people, आप में से कितने लोग यहाँ पे हमारे एस्ट के फ्री प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं? आपको आप मैसेजेस देखते टेलीग्राम चैनल पे आप कनेक्टेड है जहाँ पे डिफरेंट ट्रेड्स आते हैं. तो आपने काफी बार सुना होगा कि फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, ये सब चीजें, लाइक फ्यूचर बाय कीजिए या फिर ऑप्शंस बाय कीजिए, ये स्ट्राइक, ये समथिंग लाइक दैट. So these all these things are a part of derivative. And in our previous session we had discussed this in very detail कि like a forward contract कैसे work करता है basically, and in general derivative contract कैसे work करता है. So if you had not joined that session, I would tell you कि like कैसे आप उसको देख सकते हैं again, and you should go through that session as well, so that you will be more informed about how derivatives work basically. So you can just go to your Hedge login, and then after login you can go to Hedge TV, and here you can see our basics of derivative session. There are lots of different sessions for the different trades that we have given here as well, and also we will come with the interesting topic like this in the future as well. So stay connected with us as well, so you can learn a lot about from like what derivatives and how derivatives work from us. So should we start with the session then? आई थिंक माई वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन, एंड मेरा स्क्रीन भी आपको क्लियर दिखाई दे रहा है. Okay, so let's start with our session then. Okay, so first of all, I will just go through our previous example for those who were not here. Also, we need this example to carry forward in our next sessions as well. So we will take this example in very in very short. I will explain this example, and with this I will continue with our futures and forward contracts as well. So first of all, what we did in our previous session was that basically what example I give is that I am running a simple tea brand, let's say Shubham Tea, and what I do is basically I buy tea, that is our raw material. From distributor for 50 rupees per kg, and I package that. So packaging cost मुझे आता है एक 10 rupees का, ठीक है, and then I sell it to like kirana shops and everything. मैं different shops में उसको बेचता हूँ. So my selling price is 100 rupees. Okay. So क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है कि आपका प्रॉफिट कितना होगा? So आपका कॉस्ट है, चाय जो टी है हमारा रॉ मटेरियल, उसका खरीदने का कॉस्ट है हमारा 50 रुपीज प्लस हमारा 10 रुपीज पैकेजिंग का कॉस्ट. सो इट कम्स अराउंड 60 रुपीज टोटल. सो क्या लगता है आपको, अगर मेरा 100 का प्राइस है सेल का, सो आपका प्रॉफिट कितना बचेगा? 40 रुपीज, करेक्ट. सो 40 रुपीज अगर आपका प्राइस है, 40 रुपीज आपको प्रॉफिट मिल रहा है. लेट्स से कि आपकी प्राइस जो है वो अभी लेट्स से कि एवरी मंथ जो है आपको 1000 रुपीज 1000 kg का क्वांटिटी नीड है. क्वांटिटी जो चाहिए आपको, क्वांटिटी फॉर एवरी मंथ इज 1000 kg.
सो आपको एवरी मंथ 1000 kg क्वांटिटी का नीड है, आप 1000 kg ही खरीदते हैं, आपके पास ज्यादा बड़ा स्टोरेज नहीं है, सो आप 1000 kg खरीदते, पैकेज करते, बेचते। सो दिस इज अवर लाइक मंथ वाइज अवर बिजनेस प्लान। सिंपल है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं इसमें। सो हमारा अगर लेट्स से कि हम 40 रुपीज हमारा प्रॉफिट मार्जिन है, और एवरी मंथ अगर लेट्स से कि आपका रॉ मटेरियल का प्राइस जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहे, तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल बी आवर प्रॉब्लम देन? लेट्स से कि आज अगर आपने लिया था 50 रुपीज पर केजी के हिसाब से, बट लेट्स से नेक्स्ट मंथ जो है सेम रॉ मटेरियल जो है आपको 60 रुपीज पर केजी के हिसाब से मिले, तो क्या लगता है आपको आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना रहेगा अभी? सिंपल है, 60 रुपीज अगर आप नेक्स्ट मंथ खरीद रहे हैं, तो आपका कॉस्ट 60 रुपीज होगा, प्लस 10 रुपीज आपका पैकेजिंग, सो 70 रुपीज आपका जो है वो टोटल कॉस्ट आएगा। आपका सेलिंग प्राइस तो आपको सेम ही रखना पड़ेगा। एवरी मंथ यू कैन नॉट लाइक चेंज योर ब्रांड्स वैल्यू, एवरी टाइम यू कैन नॉट लाइक every time you will change it to 20 30 rupees, it will affect your brand. So you have to keep some stable value to sell your product as well. So you have to be very careful while increasing your products price and everything. So you have to कीप इन माइंड कि लाइक आपको आपका प्राइस जो है वो कंट्रोल में रखना है, आपका जो सेलिंग प्राइस है वो भी कंट्रोल में रखना है, बट एट द सेम टाइम आपका रॉ मटेरियल का प्राइस जो है वो भी अगर आपका फ्लक्चुएट हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे आपका अगर सेलिंग प्राइस 100 ही था, आपको 100 ही रखना पड़ेगा, ज्यादा चेंज नहीं कर सकते आप, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ पे ओनली 30 रुपीज रह जाएगा। सो एवरी मंथ अगर ऐसा फ्लक्चुएशन आए, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉट्स ऑफ बिजनेस वर्क्स इन दिस वे कि लाइक आपका रॉ मटेरियल आप बाय करते हो, पैकेजिंग एंड सेलिंग, इट्स वेरी सिंपल काइंड ऑफ बिजनेस, लॉट्स ऑफ बिजनेस वर्क इन दिस फॉर्मेट। बट क्या होता है कि रॉ मटेरियल जो होता है वो आपका वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है इस चीज में। सो अगर आपका रॉ मटेरियल का प्राइस अगर कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट होता रहे, तो एट दैट टाइम योर प्रॉफिट मार्जिन विल बी रिड्यूस्ड एज वेल, जस्ट लाइक वी हैव सीन इन दिस एग्जांपल कि आपका पहले प्रॉफिट जो था वो 40 रुपीज हो रहा था, बट लेट्स से कि आपका जो रॉ मटेरियल है वो सडनली 60 रुपीज पर केजी के हिसाब से बिकना चालू कर दे, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। सो सिंपल है, रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ा तो आपका प्रॉफिट मार्जिन पे अफेक्ट पड़ेगा। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैड कम अप विथ अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन। कैन एनीबॉडी टेल मी कि लाइक वो सॉल्यूशन क्या था? जो भी प्रीवियस सेशन में थे उनको बता रहेगा, हमने एक सॉल्यूशन का इसमें यूज किया था कि लाइक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देयर आर लॉट्स ऑफ सॉल्यूशन एज वेल, बट वी विल डिस्कस लाइक इन शॉर्ट लाइक दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। Okay, so someone is giving like yes, perfect answer is we had formed a contract with our distributor. It's a simple contract. We form a contract to buy टी, जो है हमारा रॉ मटेरियल, टू बाय टी एट अ फिक्स 55 रुपीज पर केजी फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर every month. Why do you think 55 rupees? Like why we paid 55, like we agreed to pay 55 rupees for something that cost 50 rupees? Every month हम 55 रुपीज का कॉस्ट देने के लिए क्यों तैयार है? टू बाय सेम टी, लाइक एवरी मंथ हम हमने डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए और हमने बोला कि भाई मैं एवरी मंथ आपसे 55 रुपीज पर केजी के हिसाब से चाय खरीदूंगा, भले अगर प्राइस 50 रुपीज का चल रहा है, बट गिव मी 1000 kg ऑफ टी एवरी मंथ फॉर 55 रुपीज पर केजी। मुझे कोई चेंज नहीं चाहिए उसमें, मुझे प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए, मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए तैयार हूँ। So why do you think we formed this contract? To keep the prices stable, to keep our raw materials prices stable. So that is the most important part कि like आपको अगर ऐसे सिंपल काफी ज्यादा बिजनेसेस में होता है कि आपको स्टेबल प्राइस करने के लिए रखने के लिए आप एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं किसी भी आपके रॉ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, यही कॉन्ट्रैक्ट है। दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट like name,
and these contract plays a very important role in our derivative markets. So these contract are called forward contract. These are the first type of derivative contract actually. So derivative forward contract क्या है? These are the contract between two or more parties to trade any kind of commodity or something, like to trade any material or something. Let's say quantity, we say commodity at certain rate in future. सो आपको यहां तक क्लियर हुआ कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना है? सिंपल था कि आपको आपका प्राइस जो था, रॉ मटेरियल का प्राइस, वो फ्लक्चुएशन जो था वो आपको मेंटेन करना था, आपको स्टेबल रखना था. टू कीप दैट स्टेबल वी वेंट टू अवर डिस्ट्रीब्यूटर एंड व्हाट वी सेड इसके लाइक, मैं भाई आपको एक्स्ट्रा थोड़ा पैसा दे दूंगा. वो एक्स्ट्रा पैसा क्यों दूंगा? 55 रुपीज क्यों दूंगा? 50 रुपीज का चाय अगर मुझे मिल रहा है तो मैं 55 रुपीज क्यों दूंगा? सो दैट डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपको बोले कि यार मैं तो आपको एवरी मंथ अगर 1000 kg अगर आपके लिए सेपरेट रखूं तो मुझे वो सेपरेट रखना पड़ेगा, आप लोगे नहीं लोगे उसका मुझे भरोसा नहीं, कुछ नहीं. सो टू स्टोर दैट एवरीथिंग, लाइक उसका जो मुझे स्टोरेज कॉस्ट लगेगा, ये एवरीथिंग इन कीपिंग इन माइंड मुझे कुछ तो भी एक्स्ट्रा चाहिए जिसकी वजह से मुझे अश्योरिटी भी हो, और अगर मेरा ये भी हो कि नुकसान भी नहीं हो कि मैंने स्टोर किया बट मुझे उसका वैल्यू ही नहीं मिला. So to keep that in mind, by keeping all this in mind, we formed a contract to pay some extra money and form a contract with our distributor. This contract is called forward contract. And जो 55 रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट है, ये सिंपल कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका 55 रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट है ये. क्या लगता है आपको यहाँ पे अगर आपका प्राइस जो है टी का प्राइस अगर सडनली बढ़े तो आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बढ़ेगा? So lots of confused like answers. Okay, so let me ask you first, like simplest इस टेस्ट से स्टार्ट करते हैं. आपका जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो बना है 55 रुपीज पर केजी के हिसाब से. 55 रुपीज पर केजी के हिसाब से आप लेंगे, ऐसा आपने डिसाइड किया है. कैन यू टेल मी कि आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस चीज पे डिपेंड है? किस चीज के प्राइस पे आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड है? टी. परफेक्ट, राइट. सो टी जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस डिसाइड करेगा. सो आपका जो डेरिवेटिव का डेफिनेशन है वो ऐसा कहता है कि डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट which derives its value from certain underlying asset. In simple words, like in most simplest word, डेरिवेटिव एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो खुद की प्राइस किसी दूसरे चीज से लेता है, किसी दूसरे चीज पे उसका प्राइस खुद का डिपेंड रहता है. सो इसमें दो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर आते हैं, दैट इज अंडरलाइंग एसेट एंड like derives from a certain underlying asset. So deriving its value from a certain underlying asset. This is the main part. So deriving कहां से? किसी underlying asset से. तो हमारे यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट था, हमने जो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, इट्स अ पार्ट ऑफ अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट. सो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का अंडरलाइंग एसेट क्या होगा? आप में से कितने लोग बता सकते हैं मुझे? राइट 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 राइट. ओके, सो टी आपका अंडरलाइन एसेट रहेगा. सिंपल है, टी का प्राइस पे ही आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बना है. टी का प्राइस 50 रुपीज चल रहा था, इसकी वजह से आपने आपका जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसका प्राइस 55 रुपीज के हिसाब से रखा है. नाउ दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ओनली टू पार्टीज. लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन. व्हाट हैपेंस इफ टी प्राइस नेक्स्ट मंथ जो है हमारा
₹70 पर केजी होता है। टेन टेल में क्या हो सकता है आपका? आपका अगर आपने ₹55 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनाया था ये फर्स्ट फर्स्ट डे को, लेट्स से कि आपने नेक्स्ट मंथ आप गए और आप बोले कि यार मुझे चाय खरीदना है आपसे, आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए और आपने कहा कि मुझे चाय दे दो 55 रुपीज के हिसाब से ही, बट अभी तो प्राइस चल रहा है ₹70 पर केजी। व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन? क्यों नहीं रैंडम आंसर्स के लिए आपको जो भी दिमाग में आ रहा है, लाइक आप अगर आपका जो प्राइस था आपने ₹55 पर केजी के हिसाब से लेने के लिए डिसाइड किया था, बट आप आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हो और उसको बोलते हो कि मुझे मेरा ₹55 पर केजी के हिसाब से जो चाहता है वो मुझे दे दीजिए। व्हाट डू यू थिंक डिस्ट्रीब्यूटर विल सेल से? Do you think he will be willing to sell you the same tea for ₹55 kg that is selling at around ₹70? मतलब जो ₹70 पर केजी के हिसाब से चाय चल रहा है, वो आपको लगता है कि वो आपको सेम चाय ₹55 पर, या तो someone is going like नहीं दूंगा भाई ऐसा बोलेगा, वो बराबर है। सो राइट, इट इज द राइट आंसर एक्चुअली, वो डायरेक्टली नहीं बोल देगा। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है, इसके दो मेजर इश्यूज है, दो मेजर रिस्क बोल सकते हैं हम, दो मेजर रिस्क है। सो पहला रिस्क ये है कि लेट से कि ह्यूज प्राइस फ्लक्चुएशन आता है। लेट से कि आपका प्राइस अगर लेट से कि ₹55 पर केजी के हिसाब से आपने बाय करने की डिसाइड किया था, बट लेट से कि नेक्स्ट मंथ आपका टी का प्राइस जो सडनली कुछ रीजन की वजह से ₹20 पर केजी के हिसाब से मिलने चालू हो जाए, तो डू यू थिंक यू विल बी विलिंग टू बाय दैट सेम टी फॉर ₹55 पर केजी? नो, राइट? सो दैट इज राइट कि लाइक आपका अगर मेजर फ्लक्चुएशन होता है प्राइस में, सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर वेरी स्मॉट, लाइक वेरी स्मॉल फ्लक्चुएशंस के लिए वर्कआउट होता है, बट अगर ह्यूज फ्लक्चुएशंस हुए तो दैट वोंट वर्क वेरी प्रॉपरली। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एक इश्यू होता है कि एनी पार्टी कैन रिफ्यूज टू लाइक अधेर टू द कॉन्ट्रैक्ट, लाइक उसका रिस्पेक्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट को जो रिस्पेक्ट करना होता है वो मे बी ना करे ईच पार्टी। सो दैट रिस्क in particular is called counterparty risk. यहां तक कितने लोगों को आपको समझ में आया कि काउंटर पार्टी रिस्क एक पर्टिकुलर पार्ट है जहां पे आप का कोई आपने जिस इंसान के साथ है, जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, वो मे बी उस कॉन्ट्रैक्ट को लाइक फॉलो ना करे, वो बीच में आपको वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे आपके साथ। सो दैट इज कॉल्ड काउंटर पार्टी रिस्क। अभी आपने क्या डिसाइड किया था कि आपको 1000 kg ही चाय चाहिए था, एक पर्टिकुलर आपको लेट से कि दार्जिलिंग टी चाहिए था पर्टिकुलर, और वही टी आपको चाहिए था और आपको 1000 kg पर 1000 kg ही चाहिए था और ₹55 पर केजी के हिसाब से ही चाहिए था। दीज आर योर कंडीशंस दैट यू हैड फाउंड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अभी कॉन्ट्रैक्ट सडनली आपने मंथ आफ्टर मंथ आप गए डिस्ट्रीब्यूटर के पास और आपने बोला कि यार मुझे चाय चाहिए, बट अभी वो तो सडनली ₹70 पर केजी के हिसाब से बिक रहा है और डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको मना कर दिया। व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन? विल यू बी एबल टू बाय दैट टी फॉर सेम प्राइस लाइक लाइक क्विकली? आप अगर डायरेक्टली मार्केट में जाएंगे आपको इतना सारा क्वांटिटी जो है 1000 का केजी का क्वांटिटी आपको सेम टी सडनली मिल जाएगा। व्हाट डू यू थिंक will that happen? Like say very easily it can happen, but it you will have to put efforts. You will have to like go to lots of distributors, you have to connect with lots of distributors. You might not find the same type of tea that you wanted, or you might not find the same quantity that you wanted. Something will be problem. This particular problem, this problem happens in our market as well, and you might have heard about this problem as well. This problem is called liquidity risk. हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड लाइक, आप में से जितने भी लोग अगर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो या जिन्होंने भी किया हो ऐसा, कि आपने सुना होगा कि लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, समथिंग लाइक दैट? आप में से किसी ने सुना है ये सब चीजें? तो ये होता है एक लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क यानी क्या कि आप जो चीज सेम क्वांटिटी सेम चीज अगर आप खरीदना चाहते हो तो सामने आपके लिए कोई सेलर नहीं है, या फिर आप सेम कोई चीज बेचना चाहते हो तो आपके सामने कोई बायर नहीं उसके लिए
खरीदने के लिए। सिंपल है, लेट्स से कि आपने एक घर खरीदा था, 50 lakhs का घर आपने खरीदा था, और सडनली कोई रीजन की वजह से आपका ट्रांसफर हो गया, समथिंग लाइक दैट, आपको वो घर सेम 50 lakhs का जो घर आपको खरीदा था, आपको सडनली बेचना पड़े, आपको सडनली उस प्राइस, आपको प्राइस चाहिए, 50 lakhs रुपीज का आपको नीड है फॉर दैट टाइम में। सो डू यू थिंक कि वो आप घर अभी जैसे ही आपने मार्केट में सेल करने के लिए डाल दिया, आपको सेल हो जाएगा? सो नहीं होगा, राइट? कॉन्ट्रैक्ट लाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स इन अ सेम सिमिलर वे, कि आप अगर सडनली वो चीज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को आप दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के साथ कन्वर्ट करना चाहो, तो आपको मे बी वो सेम चीज एग्जैक्टली नहीं मिले। सो दीज टू risk are the very major factor that plays in our financial market. These two risks has caused like lots of problems in the like history of financial markets. और मे बी आपने अगर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आपने सुना होगा, तो these particular contract and these particular two risks have caused a lot of problems in our financial market. So to understand a derivative market, actually derivative market is a very interesting thing, but to understand these things, you need to understand the basics as well. And understanding counterparty risk, liquidity risk becomes very important as well. So यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? काउंटरपार्टी रिस्क क्या हुआ कि काउंटरपार्टी रिस्क यानी सिंपल है कि आप में से कोई भी एक पार्टी जो है वो पीछे हट जाए, ना बोल दे, दैट इज कॉल्ड काउंटर पार्टी रिस्क। और लिक्विडिटी रिस्क है, सिंपली है कि आपके अगर आगे वाली पार्टी ना बोल दे तो दूसरी पार्टी मिलना आपको अगर डिफिकल्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी रिस्क। सिंपल, दिस टू रिस्क। यहां तक कितने लोगों को क्लियर है? दीज आर द टू मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। सो मेजर है कि काउंटर पार्टी रिस्क होता है उसमें कि काउंटर पार्टी आप बहुत लिमिटेड लोगों के साथ लाइक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, तो मे बी अगर सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाला अगर नहीं बोल दे तो आपको सेम चीज मिलना डिफिकल्ट हो जाएगा, दैट इज वन थिंग। एंड अगर सेम चीज नहीं मिले तो आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा और मे बी वो चीज ना मिले, तो दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी रिस्क। यहाँ तक सभी लोगों को आई थिंक अभी तक क्लियर हो गया? ओके, लॉट्स ऑफ लाइक क्लियर सब बोल रहे, गुड गुड, ओके, परफेक्ट। सो यहाँ तक आपको अगर समझ आ रहा है, तो क्या आप मुझे आप सॉल्यूशन बता सकते हो कि ये दो रिस्क को आप कैसे काउंटर कर सकते हैं, यानी कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स लाइक काउंटर पार्टी रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क? हाउ डू आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम? मुझे अगर कोई पार्टी अगर सामने वाला नहीं बोल दे या मुझे दूसरा पार्टी ढूंढना है सडनली, तो ये दो रिस्क में कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? कोई आइडिया आपके दिमाग में कि लाइक कुछ सा इंटरेस्टिंग आइडिया जिसकी वजह से मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ? कॉन्ट्रैक्ट तो हमने डेफिनेटली बनाया था, यहाँ पर भी हमने कॉन्ट्रैक्ट ही बनाया था, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। बट क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अगर वर्ड हो गया तो दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, सेम प्रॉब्लम आएगा काउंटर पार्टी रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क का। सो एवरी टाइम अपन आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, कोई तो भी एक इंटरेस्टिंग सोल्यूशन चाहिए हमें इसके लिए। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आप में से वेजिटेबल्स कितने लोग खरीदते हैं? ओके, लॉट्स ऑफ पीपल बाय वेजिटेबल्स, राइट? आप कहाँ पे जाते हैं? लोकल स्टोर में, राइट? लोकल सब्जी वाला रहेगा आपके पास, वो उसमें। बट आपको अगर क्वांटिटी में अगर कोई लेट्स से कि किसी ने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वेजिटेबल्स लगाया है और उसको वो बेचना है किधर, तो कहाँ पे जाते हैं आप अगर आपको क्वांटिटी में ट्रेड करना है? सब्जी मंडी। दैट हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम इन इंग्लिश एज वेल। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज दैट नेम पर्टिकुलर? Market. That is right, that is right. So what we create is we create a market where what will happen if we create a market? There will be lots of buyer and sellers, correct? There will be lots of buyer and sellers in the market, but to solve like our, so do you think कि ये रिस्क आपका सॉल्व हो जाएगा, काउंटर पार्टी रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क? डेफिनेटली इट विल सॉल्व, बिकॉज क्या होगा कि आपको अगर यहाँ पे एक चीज से प्रॉब्लम आ रहा है तो दूसरा वाला जो है वो आपको ये सेम कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए तैयार हो जाएगा, या सेल करने के लिए तैयार हो सकता है। वी ऑल्सो फॉर्म अ मार्केट टू सॉल्व दिस मेजर इशू इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडिया में इन पर्टिकुलर वी हैव एनएससी,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपको आपने सुना होगा, एनएससी जो है, एंड बीएसई एज वेल. So NSE and BSE are the two markets where you can directly, like you can connect with this broking account. हम डीमैट अकाउंट खोलते हैं and you can directly connect with our NSE BSE sites and you can trade like different from different brokers. So not going in details, but NSE and BSE are our major markets like equity markets. क्या होगा अगर मार्केट आएगा तो, मार्केट आएगा तो क्या लगता है आपको कि एक एक ही चीज आप पर्टिकुलर, लिक्विडिटी आएगा डेफिनेटली, काउंटर पार्टी भी आपका सॉल्व हो जाएगा. बट क्या होगा कि इसका एक मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आपको मार्केट में कोई चीज बेचना है तो आपको एक स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा उस चीज का. लेट्स से कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग आएंगे, आपको 1000 केजी खरीदना है, किसी को में भी 950 केजी खरीदना है, किसी को में भी 1700 केजी खरीदना है. लेट्स से कि अलग अलग लोग है, कोई बेचने वाले आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि मुझे 700 केजी खरीदना है, कोई बोल रहा है कि मुझे यार इतना नहीं मेरे पास, मुझे सिर्फ 200 केजी ही बेचना है, कोई बोल रहा है कि मुझे अलग क्वांटिटी बेचना है. सो लॉट्स ऑफ डिफरेंट different types of people will come with different demands. Do you think you can solve everyone's demand particularly in different way? No, right, perfect. So you cannot solve this problem in different demands. So the major reason to form a market is to form a standardization. So we create a standardization. सो स्टैंडर्डाइजेशन में हम क्या करते हैं कि हम, स्टैंडर्डाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. ओके, सो कीप दैट इन माइंड. आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल कि लाइक ये कैसे यूज होता है. स्टैंडर्डाइजेशन क्या करता है कि आपको मार्केट स्टैंडर्डाइज कर देता है कि आप फिक्स 100 केजी क्वांटिटी का ही लाइक चाय खरीद सकते हो या बेच सकते हो. आपको अगर 1000 केजी खरीदना है तो आपको कितना लॉट्स फिर लेना पड़ेगा. सो दैट इज बेसिकली लॉट साइज. लेट से कि मैंने लॉट साइज फिक्स कर दिया कि मैं 100 केजी का ही सामान खरीद या बेच सकता हूं. तो एक लॉट होगा 100 केजी का. सो व्हाट डू यू थिंक, आपको 1000 केजी खरीदना है तो आपको कितने लॉट लेना पड़ेगा? राइट राइट, लॉट्स ऑफ करेक्ट आंसर्स, लाइक करेक्ट. सो 10 लॉट लेना पड़ेगा, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन. आप बोलोगे कि एक फिक्स एक्सपायरी रहेगा, कोई रैंडम डेट्स पे हम ट्रेड नहीं करेंगे. सो एक्सपायरी होगा हमारा जहां पे जिस दिन हमें हमारा लाइक लेट से जो ट्रेड है वो करना पड़ेगा. सो 1 मंथ का हम एक पीरियड रखेंगे, एक फिक्स डेट रखेंगे कि एवरी मंथ के लास्ट थर्सडे को हम ट्रेड करेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट. सो ऐसा हम स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे. सो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्डाइजेशन, अ स्टैंडर्डाइज्ड forward contract has a very interesting name now. Can anybody guess what that name is? A standardized forward contract. So it is not a standardized forward contract in particular. It is a standardized contract that works exactly like forward contract. Can anybody tell me what this standardized contract has? Like what is the name of this standardized contract? ओके, सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको वापस एक बार रिपीट कर देता हूं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो था हमारा ये दो इश्यूज था, काउंटर पार्टी रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क. हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट एक पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे एंड इसकी वजह से हमें क्या हो रहा था कि काउंटर पार्टी रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क आ रहा था. टू सॉल्व दिस टू प्रॉब्लम्स वी क्रिएटेड अ मार्केट, लाइक अ सर्टन मार्केट जहां पे लॉट्स ऑफ बायर एंड सेलर आ सकते हैं. एंड व्हाट वी डिड कि लाइक अलग अलग लोगों के अलग अलग डिमांड है, हर डिमांड हम सॉल्व नहीं कर सकते. To so that we can standardize, we so what we did is we standardized this contract. We basically क्या what we did कि like हमने बोल दिया कि लॉट साइज होगा 100 केजी पर 100 केजी का लॉट होगा 1 लॉट एंड एक्सपायरी होगा वो 1 मंथ का होगा. ये कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाए और ये हम कॉन्ट्रैक्ट हम देना चालू कर दे. इन कॉन्ट्रैक्ट को एक पर्टिकुलर नाम है, आपको मैं बताता हूँ. इन कॉन्ट्रैक्ट को नाम है future contract. So someone gave like one interesting answer, but I will discuss that in our next like chapter. But this is called future contract. Future contract जो है similar वर्क करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के जैसा.
व्हाट हैपेंस इज दैट कि लाइक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि स्टैंडर्डाइजेशन रहता है, एक फिक्स लॉट साइज रहता है, फिक्स एक्सपायरी रहता है, उसका उसका फिक्स एक पर्टिकुलर चीज रहती है, एवरीथिंग इज लाइक गिवन बाय द मार्केट कि लाइक ये चीजें उनको उसमें करनी पड़ती है. So that is called future contract. Future contract is a standardized contract that is traded in market. Basically, standardized contract that is traded in market. That is traded in market. सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपको समझा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या इश्यूज थे, उन्हीं प्रॉब्लम को लाइक सॉल्व करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आए थे. सो दैट की लाइक डिफरेंट काउंटर पार्टी रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क का जो इश्यू था वो सॉल्व करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आए थे. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स इन लाइक सिमिलर वे, दे आर लाइक जुड़वा भाई के जैसे वर्क करते हैं, बट ओनली डिफरेंस इज दैट कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो काफी ज्यादा लाइक चेंजेबल होते हैं. आप अपनी कंडीशन के हिसाब से उनको मॉडिफाई कर सकते हैं. आप बता सकते हैं कि आगे वाले को कि मुझे ऐसा ही लाइक चाय चाहिए, ये पर्टिकुलर चाय चाहिए, ये साइज का मुझे पत्तों वाला चाय चाहिए, लाइक बहुत बारीक को नहीं चाहिए, बहुत मोटा नहीं चाहिए, सब पर्टिकुलर अलग अलग कंडीशंस आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में रख सकते हो. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इसके एकदम अपोजिट है. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एक स्टैंडर्डाइजेशन रहेगा, फिक्स आपका एक लॉट साइज, फिक्स क्वालिटी, फिक्स क्वांटिटी एंड एवरीथिंग, फिक्स एक्सपायरी, इसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में यही एक डिफरेंस है. सो कितने लोगों को यहां तक समझ में आया कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में डिफरेंस क्या है? कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है जो मार्केट में ट्रेड होता है, एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, ओके परफेक्ट. सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो लाइक टू पार्टीज में, प्राइवेट पार्टीज में होता है, वो काफी कस्टमाइजेबल होता है. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं कस्टमाइजेबल रहते हैं, बट इसके साथ इशू ये आता है कि कस्टमाइजेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में इशू आता है कि वो कस्टमाइजेशन ही आपके अगेंस्ट प्ले कर सकता है. मे बी आपको सेम कस्टमाइजेशन दूसरों के साथ ना मिले. सो टू सॉल्व दिस ओनली प्रॉब्लम, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर स्टैंडर्डाइज्ड. दिस इज द ओनली मेजर डिफरेंस. सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मोस्ट ऑफ द लोगों ने आपने सुना नहीं होगा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट पार्टीज में बनते हैं एंड दे आर लाइक ट्रेडेड प्राइवेटली, लाइक ओवर द काउंटर हम उसको बोलते हैं, ओवर द काउंटर ट्रेड होते हैं. एंड स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मार्केट में ट्रेड होते हैं. तो आपको अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना हो तो जस्ट यू कैन साइन, लाइक यू कैन फॉर्म अ डीमैट कॉन्ट्रैक्ट, लाइक डीमैट अकाउंट, एंड यू कैन ट्रेड विद द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एफएनओ एक्टिवेट करके. सो ये सिंपल बात है. सो यहां तक सभी लोगों को क्लियर है? ओके, ओके राइट. सो यहां तक काफी लोगों को क्लियर है ऐसा लग रहा है. बट बट अभी तक मुझे एक प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुआ है मेरा. क्या प्रॉब्लम था मेरा? डू यू थिंक कि अगर अभी आप भी ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के साथ ट्रेड करूं, डू यू थिंक मेरा प्राइस फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम, अभी भी मेजर प्राइस फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है? मैं अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का साथ भी यही चीज होगा कि लेट से अगर 50 रुपीज का मैंने आज लिया था, बट लेट से कि नेक्स्ट मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 80 रुपए का हो गया. सो हाउ डू यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो मेरा वही रहा. नो 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 नो. लेट मी गिव यू एग्जांपल. लेट से आपको क्या होता है कि आपको आपने आज का आपको आज पता था कि आप सिंपल है कि फॉरवर्ड फ्यूचर के बारे में भूल जाइए अभी के लिए. आपको पता है कि फॉरवर्ड क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, इतना सिंपल याद रखिए. आपने कॉन्ट्रैक्ट कोई बनाया नहीं, किसी के साथ कुछ बनाया नहीं. आपने क्या किया, आज 50 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको चाय मिल रहा था. सडनली एक न्यूज आता है, लेट से आफ्टर लाइक 2-3 डेज, कि लॉट्स ऑफ रेन हुआ है, जहां पे भी ट्री प्लांट लाइक टी प्लांटेशन होता है, वहां पे काफी ज्यादा रेन हुआ है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है टी प्लांटेशन का. क्या लगता है आपको कि टी के प्राइस का क्या होगा उसकी वजह से? टी का सप्लाई, उन्होंने कहा है कि इन नेक्स्ट फ्यू डेज टी सप्लाई विल बी वेरी लिमिटेड, सो बिकॉज ऑफ द रेनी सीजन एंड ऑल द प्राइस विल रॉकेट. ओके, सो गुड आंसर. प्राइस विल रॉकेट. आपको पता चल गया कि आज मैंने 50 रुपए केजी तो से तो खरीदा था, 2-3 दिन बाद आपको पता चल गया कि यार मेरा प्राइस जो था, अभी का प्राइस जो था वो
उतना नहीं रहने वाला, 50 पैसे पर नहीं रहने वाला, अभी मुझे बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है वो प्राइस। सो नेक्स्ट मंथ तो आपको वही प्राइस से खरीदना था, 50 रुपए पर केजी के हिसाब से। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल यू डू नाउ? सो आपको जो खरीदना था, आपको आफ्टर अ मंथ ही खरीदना था। लेट्स से कि आपका 50 रुपए पर केजी का टी चल रहा था, और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था, अभी हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो सोचते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो था वो 55 रुपीज पर केजी के हिसाब से चल रहा था। 3 दिन बाद न्यूज आया कि टी प्राइजेस विल बी गोइंग अप बिकॉज ऑफ सम रीजन। सो क्या होगा, फ्यूचर प्राइस का भी, फ्यूचर का प्राइस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, राइट? सो लेट से आपका टी का प्राइस को अभी आपको 50 के रुपीज 50 केजी पर रुपीज के हिसाब से आपने ले लिया था ये मंथ में। नेक्स्ट मंथ में आपको 50 रुपीज पर केजी के हिसाब से वापस लगने वाला है। लेट से कि आपका जो फ्यूचर का प्राइस है वो सडनली हो गया है अभी बढ़ के 65 रुपीज। सो आप 3 डेज के न्यूज के बाद जो था, अभी जो का प्राइस था वो था 50 की जगह हो गया लेट से 55 रुपीज पर केजी। एंड फ्यूचर जो था वो 60 रुपीज पर केजी के हिसाब से ट्रेड कर रहा है आफ्टर द न्यूज, क्योंकि आप सबको पता चल गया कि यार न्यूज आ गया है तो थोड़ा सा बढ़ने वाला है प्राइस। सो फ्यूचर प्राइस को जो है इफेक्ट पड़ने वाला है। तो टी का प्राइस भी बढ़ गया, फ्यूचर का प्राइस भी बढ़ गया। बट आपको अभी नुकसान नहीं चाहिए, आपको अभी आपका नुकसान बचाना है। तो आप क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट मंथ तो आपको 60 रुपीज पर के 55 रुपीज केजी के हिसाब से करना, खरीदना था। 50 रुपीज पर केजी के हिसाब से करना था। बट आपको क्या करना है कि अभी आपने लेट से कि मैंने क्या कर दिया, फिर मैंने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 60 रुपीज पर केजी के हिसाब से खरीद लिया। मुझे नहीं पता आफ्टर अ मंथ क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि मेरा काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, मे बी मुझे नेक्स्ट मंथ में ज्यादा प्राइस लेने के लिए जरूरत पड़ेगी। सो मैंने 60 पर रुपीज के हिसाब से खरीद लिया। आफ्टर अ मंथ, आफ्टर अ मंथ क्या होता है, आपका जो टी का प्राइस है, अभी डिफरेंस जो है वो 5 रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट में। सो ले आफ्टर अ मंथ क्या हुआ कि आपको प्राइस जो है वो 80 रुपीज पर केजी के हिसाब से हो गया, टी का प्राइस। ठीक है। सो फ्यूचर का प्राइस कितना रहेगा, ये बता सकता है? 85, करेक्ट। सो 85 का फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका, फिक्स है अपना। आपको पता है कि जितना टी का प्राइस बढ़ेगा उतना ही आपका फ्यूचर का प्राइस भी बढ़ने वाला है। 85 रुपीज पर केजी के हिसाब से आपका फ्यूचर ट्रेड हो रहा है। आपने लिया कितने में था? 60 रुपीज पर केजी के हिसाब से। आपको फ्यूचर में प्रॉफिट कितना हुआ फिर? 85 माइनस 60 रुपीज, दैट इज हाउ मेनी, 25 रुपीज, राइट? आपको खरीदना टी कितने पे था? 55 पे, राइट? तो आपका लॉस जो है, जो आपको टी में खरीदना था 80 रुपीज था, माइनस 55 रुपीज। तो आपको खरीदना तो 55 रुपीज में था, बट अभी आपको 80 रुपीज में मिल रहा है। तो लॉस कितना हो गया आपका इधर, सामने सामने? सेम 25 रुपीज। सो क्या किया आपने इधर, आपका जो फ्यूचर का लॉस जो बढ़ने वाला था
वो आपने क्या किया इधर? आपको पता था कि आपको 1000 केजी एवरी मंथ लगता है, ठीक है? 1000 केजी आपने अभी लिया था, आपके पास स्टोरेज के लिए कॉस्ट नहीं है। सो आप, और आपको जब न्यूज पता चला आपको, हाँ परफेक्ट, डेट इज अ वेरी गुड आंसर एक्चुअली। सो क्या था, मैं आपको एक बार फिर से कंडीशन बता देता हूँ जिनको पता नहीं चला। 1000 रुपए का केजी, 1000 रुपए पर केजी के हिसाब से आपने चाय खरीदा था। आपको पता था कि आपके पास स्टोरेज तो है नहीं, तो आप और 1000 केजी तो खरीद नहीं सकते। 2 दिन बाद आपको न्यूज पता चला कि यार मेरा जो टी था उसका प्राइस सडनली बढ़ने वाला है इन द नेक्स्ट मंथ। सो आपने क्या किया यहाँ पे, आपने क्या किया, आपको तो स्टोरेज के लिए तो आपके पास कुछ है नहीं। सो आपने इंस्टेड ऑफ बाइंग टी, यू बॉट, व्हाट यू बॉट? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट। सो यू बॉट इंस्टेड ऑफ बाइंग टी, लाइक रॉ मटेरियल आप बाय करके उसको स्टोर करेंगे, उसका खर्चा आएगा, इंस्टेड ऑफ दैट डूइंग, इंस्टेड ऑफ ऑल डूइंग लाइक ऑल दैट थिंग्स, you just bought a future contract. And what you did, you hedged the risk. Someone has given a very correct answer. You hedged the risk. Hedging is a very important part in derivative contracts. To hedge our risk, the derivative contracts had come. So that is the most important part. So you understand futures. Like let's say कि आज अगर मेरा प्राइस अगर 80 की बगा, लेट्स से कि ठीक 4-5 दिन बाद मुझे पता चला कि यार ये जो प्राइस था इसका क्या बोलते हैं इसको, टी का प्राइस जो है वो इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होने वाला है, वो उल्टा कम हो जाएगा क्योंकि अदर जगह से सप्लाई काफी अच्छा आने वाला है। और इंस्टेड ऑफ 55 पर केजी, लेट्स से कि टी जो है आपका वो सडनली 30 रुपीज पर केजी के हिसाब से बिकना चालू कर दे। तो टी अगर आपका 30 रुपीज हो गया यहाँ पे, तो आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने का रहेगा? 35, राइट? आपने लिया था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने में? 85 में। सो लॉस इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, लॉस इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितना हुआ आपका? 85 रुपीज में आपने फ्यूचर खरीदा था, सॉरी 60 रुपीज पर, 60 रुपीज में आपने फ्यूचर खरीदा था, एंड माइनस 35 रुपीज, सो दैट इज बेसिकली 25 रुपीज। एंड सिमिलरली आपने चाहे आपको 50 55 55 रुपए केजी के हिसाब से खरीदना है, आपको बताया आपका प्रॉफिट मार्जिन के कितना है। अगर प्रीवियस अगर चीज अगर भूल गए होंगे तो आपको बताया कि आपका 40 रुपीज का ही मार्जिन था। बट यहाँ पे आपको अगर चाय खुद ही 10 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल रहा है, तो आपको 25 रुपए का फायदा इधर हो रहा है। जो आपको 55 रुपीज में खरीदना था वो प्रॉफिट होगा, इधर अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया आपका। सो प्रॉफिट इन टी, रॉ मटेरियल जो आपका, वो भी इक्वल हो जाएगा 55 माइनस 30, दैट इज 25। So basically what we do is we hedge our risk by using forward contracts और future contracts. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का आपको यहाँ तक क्लियर है कि आप कैसे हेज करते हैं? सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से आप आपकी जो पोजीशन है या आपकी जो भी चीजें हैं, एक पर्टिकुलर चीज जो है आपका अंडरलाइंग एसेट जो रहता है, वो आप हीज कर सकते हैं। सिमिलर होता है निफ्टीज में या फिर स्टॉक्स में भी आप कर सकते हैं कि स्टॉक्स में भी डिफरेंट स्टॉक्स, रिलायंस जैसा स्टॉक भी होता है वो ट्रेड होता है, उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रेड होता है। सो लेट्स से कि आपके पास अगर लॉट, मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल दे देता हूँ कि लेट्स से कि फ्यूचर आपके पास लॉट्स ऑफ रिलायंस के स्टॉक्स पड़े हुए इन लाइक मिलियंस ऑफ रुपीज, और आपके पास उतना माल पड़ा है कि आप अगर सडन फ्लक्चुएशन अगर रिलायंस में आए तो आप काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। टू रिड्यूस दैट नुकसान, कि आपको कहीं से भी तो भी न्यूज आया कि लेट्स से कि रिलायंस के स्टॉक्स काफी ज्यादा गिर सकते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इन दैट सिनेरियो इज दैट यू कैन जस्ट शॉर्ट योर फ्यूचर। सेम अगर फ्यूचर के साथ लॉन्ग के साथ जैसे वर्कआउट होता है, वाइस वर्सा, फ्यूचर शॉर्ट करके भी सेम आप आपका रिस्क हेज कर सकते हो। आपके पास अगर लॉट्स ऑफ फ्यूचर्स लाइक रिलायंस के स्टॉक्स पड़े तो आप फ्यूचर सेल करके आपको बेनिफिट हो सकता है। जब अगर रिलायंस की फ्यूचर बहुत ज्यादा गिर जाए तो फ्यूचर से आपको प्रॉफिट आएगा, एंड रिलायंस का जो भी लॉस है वो उसके साथ ऑफसेट हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक एडवांटेजेस, लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज एजिंग। And in our like next like sessions as well, we will discuss these things in quite detail about the future contract as well. So आपको यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है कि क्या यहाँ तक हुआ है, आप कैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज कर सकते हैं?
Okay, perfect. So I think like our time is up. So I will be concluding my session with this. या सो सेम है, लॉन्ग के साथ जो कर सकते हैं वैसे ही शॉर्ट के साथ कर सकते हैं. सो इन नेक्स्ट सेशन आई विल डिस्कस के लिए आप शॉर्ट के साथ कैसे कर सकते हैं, बट आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि लाइक आप कैसे कर सकते हो, आप मुझे एक बार बताइए. सो इन नेक्स्ट सेशन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वे से आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि आप कैसे उन फ्यूचर को भी यूज कर सकते हो, एंड इन डिटेल की लाइक आप फ्यूचर का प्राइस जो है आपको 55 रुपीज पर केजी ही क्यों, अगर 50 रुपीज का चाय है तो 55 रुपीज पर केजी ही क्यों कैसे लेते हैं आप, वो हम एक डिस्कस करेंगे मे बी अगर टाइम मिला तो. सो इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस इन डिटेल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स. सो स्टे ट्यून्ड विथ अस, and if you are interested to learn more topics like this, like understanding futures and understanding different strategies that are given by our system in like different networks like our few free groups and our premium groups as well, to know more about that and to learn more about us, stay connected with us. You can just, if you want to stay connected with us, you can just give your number and I will forward that number to our executive, and they can contact with you to help with you our app and as well, app and everything. You can watch our session like different sessions like these sessions, all these sessions are recorded, so you can just go to h.tv and htv, and then you can just watch all these sessions for free, and you can learn a lot from these videos as well. So I think we will be concluding our session with this. Thank you for joining with me and being for the whole session. And I hope you have learned something from this topic. And I will try to bring more topics like this in future as well. So thank you for being with me. If you want to like know more about us, you can drop your number as well. Okay, thank you. Thank you. Okay, so I will be concluding my session with this. Have a good day. Thank you.